this. Good afternoon, everyone. I'm so glad to be a part of the Earth Culture Fest. India's probably India's most diverse cultural fest that we have online. I apologize if I seem a bit disoriented, but it's always a bit difficult doing this on live from home. I'm still not used to it. So आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हिंदुस्तानी खाने के बारे में. Of course सबको पता है हिंदुस्तानी खाना क्या है, सब घर में पकाते हैं, पर मैं आपको कोई नए तरीके से सोचना ट्राई करूँगा दिखाने के लिए कि कैसे सोचते हैं हिंदुस्तानी खाने के बारे में. Now, whenever anybody says, Indian food, जब भी फॉरेन चैनल में कुछ होता है, और इवन अगर फॉरेन चैनल्स when they come to India and ask people, the answer is the route to Indian food is spice. Now, this is a completely wrong concept. Spice is not what makes Indian food. आप देख लीजिए, spices were something, for us they were very, very common because they all used to grow out here. But for foreigners, it was extremely exorbitant. One shipload of pepper could effectively buy you about 20-30 ships in the terms of its goods carried, value of the goods carried. तो इसमें क्या होता है कि जो उनके लिए इम्पोर्टेंट था जब वो आए हिंदुस्तान कॉलोनाइज करने के लिए 1500 से, तब से वो बोल रहे हैं कि स्पाइस स्पाइस स्पाइस. और एक किस्म से द स्पाइस ये हमारे दिमाग में भी घुस गया है कि क्योंकि वो लोग हमको स्पाइस के मसाले के दृष्टिकोण से हिंदुस्तानी खाने को देखते हैं, सो हम भी खुद अपने आप को उस मसाले के दृष्टिकोण से ही देखते हैं. और इसका एक बहुत ही डैमेजिंग असर पड़ा है हमारे कुकिंग पे. क्योंकि हर चीज़ में अगर आप देखोगे, मैंने बहुत सारे फारसी में लिखे हुए हिंदुस्तानी रेसिपीज देखे हैं 1700 1800 लगभग के पास में. उसमें क्या होता है कि 1 किलो मटन, लगभग 1 किलो मटन, उन दिनों में किलो नहीं होता था, के लिए बस 1 चम्मच मसाला डाला जाता था. 1 चाय का चम्मच, वो भी टेबल स्पून की बात नहीं कर रहा हूँ, टी स्पून की बात कर रहा हूँ. आजकल क्या होता है, 1 किलो मटन के लिए 10 टेबल स्पून चम्मच डालो ऑलमोस्ट. सो ये दृष्टिकोण एकदम गलत है. What is unique to Indian food are two things: the carbohydrates, and most importantly is the oils, the fat that you use to cook. So you see what happens in the east, Odisha, Bengal, the entire northeast, Bihar, is mustard oil, sarson ka tel. Right up to Punjab as well, in Kashmir as well. Then in the south, the cooking medium becomes raw sesame oil. हम कहते हैं उसे जिंजली ऑयल, और वो भी साउथ के ईस्ट कोस्ट में, तमिलनाडु, आंध्रा, ऐसे. What happens in the southern west coast, Kerala and Karnataka to some extent, is that you use coconut oil. Now remember, many countries had coconut, but they did not use coconut oil. You see Thai cooking, you associate Thai cooking with coconuts, but they never use coconut oil. This is the starting element. जब भी आप कुछ खाना पकाते हो, बर्तन में पहले क्या जाता है, तेल जाता है, उसी में कुछ फ्राई होता है. And the fourth most important fact that we have in India is ghee. Now, if you want to understand how important ghee was, remember the word Jesus Christ derives from ghee, right? घी का क्या होता था कि वो हवन में यूज किया करता था. हवन में क्या होता था कि आप घी को लेके पूजा बोलोगे तो घी में वो पूजा चला जाएगा, और फिर आप उसको अग्नि में डालोगे. You will put it into the fire. It burns and it takes your prayer up to heaven. In the West, what this changed to, all the ancient cultures of Greece and Rome, they used to take the fat and put it, the prayer used to be put on your forehead. This was called anointing. So Jesus's original name is Yeshua bin Yusuf. That would have been the Jewish name. What we call Jesus Christ today, Christ is a Greek term which means Christ, Jesus the anointed. And Christos, the Greek Christos itself comes from ghee, because when you put ghee on somebody's forehead in Sanskrit, it became Ghritasta, you've become the ghee, grey. In Greek, which was related to Sanskrit, it was Christos, which became Christos, which became Jesus Christ. Ghee is one of the cardinal
cooking ingredients that defines Indian cooking. Because remember, nobody outside India made ghee, right? So these are the first and most essential building blocks. दूसरा क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है. अब आप देखिए, चावल तो बस हिंदुस्तान में खाया जाता था और चीन में खाया जाता था, गेहूं तो हर जगह खाया जाता था. पर एक तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बेल्ट है हिंदुस्तान में. अगर आप देखेंगे, नॉर्थ में लोग चपाती खाते हैं जो गेहूं का है, वो काफ़ी सिमिलर है मिडल ईस्ट और यूरोप के, उधर भी गेहूं खाते हैं. साउथ में अगर आप देखेंगे, लोग मोस्टली चावल खाते हैं साउथ और ईस्ट में. पर जो वेस्ट में है, ये भी एक बहुत ही यूनिक बेल्ट है, क्योंकि ये एकदम एरिड ड्राई रीजन है. इधर लोग ज़्यादातर से क्या खाते थे? बेसन खाते थे. ढोकला में बेसन है, खांडवी में बेसन है, थेपला में बेसन है, ये सब. वेल, सम थेपलास हैव बेसन एट एनी रेट. तो ये सब, दिस वाज द यूनिकनेस. अब आप देख लीजिए, हमारे पास 3 अब कार्बोहाइड्रेट्स के बेल्ट हो गए, 4 किस्म के तेल हो गए. इनकी कॉम्बिनेशन से ही हिंदुस्तानी खाना बनता है, मसाला से खाना नहीं बनता. आप देखेंगे तो वेस्ट में भी एक ज़माने में बहुत सारा मसाला इस्तेमाल किया करते थे. जो पहला वेस्ट में कुक बुक लिखा गया था, वो था एक बंदा, जो उसका नाम था कार्लोस काप्पी. उसने पोप के लिए लिखा था एक कुक बुक 1500 एंड समथिंग में. उसमें 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, स्पाइस और चीनी. दोनों हिंदुस्तान से आया किया करती थी, और उनका जो the value of it was more than gold. So what used to happen there was, he made a mushroom pie. His mushroom pie was what the Pope really, really liked. उस पोप में 500 ग्राम मशरूम के लिए बंदे ने 100 ग्राम दालचीनी का पाउडर डाला था और 200 ग्राम चीनी डाला था. अब आप सोच लीजिए, आप कभी मशरूम को चीनी और दालचीनी के साथ खाएंगे? नहीं. तो जो आज आप यूरोपियन कुजीन देख रहे हैं, वो 500 साल पुराना यूरोपियन कुजीन नहीं है, कंप्लीटली चेंज हो चुका है. उन्होंने स्पाइस कंप्लीटली निकाल दिया है ऑलमोस्ट अपने खाने से. अब आप हिंदुस्तानी खाना देखिए, हिंदुस्तानी खाने में भी काफ़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं हुआ करता था. जो सब, एवरीबडी लव्स चिली, but remember, chilies didn't even come to India. The first came in about the 1500s. Chili was discovered by the Native Americans, the Aztecs. सब पोटैटो खाते हैं, पोटैटो भी अमेरिका से आया है, और अमेरिका तो 1492 में कोलंबस ने डिस्कवर किया था, तो उधर से ही आता है. तो आप ये सोचिए कि मिर्च से पहले हिंदुस्तानी खाना में मसाला मिर्च कहाँ आता था? मिर्च तो होता ही नहीं था, उसमें पेपर था या मस्टर्ड था. And this is where the mustard oil was very important, because the tikhapana of Hindustani cooking was through that mustard oil. So when you think about spice today, you go into all these YouTube videos and things like that. These spices they use are almost standard the same. Dalchini, ilaichi and long, cloves, cardamom, cinnamon. This is simply not the case. I have seen, I can relate to you from a Bengali point of view. In Bengal, the so-called garam masala we used to use was tej patta, at most dalchini, and sometimes whole pepper. Long was very seldom used. Ilaichi was even more seldom used. In the south, in Tamil Nadu, the other side of my heritage, the spices, the cardinal spices, there was nothing in common. There was fennel seed, saunf. There was something else called kalpasi, which is a strictly non-veg spice. There was cinnamon, of course. And I want to show you what kalpasi is, because kalpasi is the root of Chettinad food. That unique flavor that Chettinad food has comes from kalpasi. Now, you wouldn't have actually seen what kalpasi looks like, but if anybody is selling you Chettinad food in Delhi, tell them that's absolute rubbish. Now, this is what kalpasi looks like. It's actually a lichen. See this part here? This is what we use. And you wouldn't have even heard of it. But this was one of our main spices that we used to use out there. Even though ilaichi grew in Kerala, just opposite on the other side of the Nilgiri Hills, it was almost never used. Growing up as a kid, it was maybe once in a blue moon, it was used for a biryani or something like that. Then
there was also, in all this complexity, then you add issues like community and caste. Sorry, just getting back to spices. One of the very important things was that this use of fennel, saunf, is common to two places in India, both at the extremes. Fennel is extremely important in non-vegetarian Tamil cooking, and सौंफ फेनल बहुत ही महत्वपूर्ण है कश्मीरी पंडित खाना में. कश्मीर और कन्याकुमारी बीच में उतना महत्वपूर्ण नहीं था. तो ये आप देख लीजिए कितना वैरायटी हुआ करता था. हर रीजन का गरम मसाला में जो पहले साबुत हम डालते हैं, कोई 3 या 4 स्पेशल स्पाइसेस थे जो बाकी के देश में नहीं मिलता था या बाकी के देश में अलग होता था. आजकल आप कोई ये देखोगे कि सब बोलते हैं कि बस यार इलायची, दालचीनी, लौंग. That simply wasn't the case. So now coming to the differences. Now, one of the very funny stories that my parents tell me when, well, I mean, my dad is dead, but what they used to tell me was when they got married, Bengali father, Tamil mother, in the reception, meat was served. And everybody was like, oh my God, meat is being served from the Tamil side of the family. In the Bengali side of the family, when the sadhya, the wedding meal was served, because you got these marriage halls in TN, in Tamil Nadu, where you're not allowed to bring any meat inside. And they were like, oh my God, no meat. How is this even a wedding? So imagine, even within the same community, in the region itself, there is so much difference. A UP Brahmin, for example, will not touch meat, whereas a Kashmiri Pandit, for them, mutton and fish are an absolute must. For a Bengali, no holy occasion can be had without mutton or fish. And for the rest of the Brahmins in this country, that was absolute no, we can't even touch this. So remember, there was even this kind of differentiation. So, you read a lot of literature about how caste is regressive, which it is, and divisive. But remember, divisive also led to a lot of diversity. You had a lot of Bengali cooking that was preserved by the widows of Bengal. Bengal was one of the areas where sati used to be quite talked about. I mean, you read the history books, that's what they say. There's multiple histories, of course, which I'm not going to get into. But again, these were very, very important things that influenced our cuisine and our cooking. Now you come to things like even within Indian cooking now, there is a very, very dangerous trend. I've only got 2 minutes, so I'm going to wrap it up quickly. There was a very dangerous trend that you saw where, there's this homogenization happening. हर चीज में क्या होता है कि भाई प्याज से शुरू करो, फिर अदरक लहसुन पेस्ट डालो, फिर टमाटर डालो और हर चीज में गरम मसाला डालो. देखिए, और एंड में शायद बटर डालो या क्रीम डालो या ऐसे कुछ डालो. भाई इससे तो काम नहीं चलता है. हमारे घर में जब मद्रास में जब खाना पकाया जाता था, शाकाहारी खाना, उसमें ना ही तो प्याज पड़ता था, ना ही तो लहसुन पड़ता था. And it used to taste delicious. Then what happened was, even in Bengal, we never used to use onions or garlic in our cooking. On the other hand, in other parts of India, like in Rajasthan, you will use a lot of garlic and onion in your cooking. So there were all these variations. Unfortunately, those variations, see, it is the diversity. Like I showed you the oils and the carbohydrates, it was the diversity of traditions that made Indian food. Today, the problem with the digital age is when people don't know how to cook, they start adding ingredients to compensate for the flavor. जब वो पकाना नहीं जानते हैं, वो समझते हैं कि भाई ये टेस्ट अच्छा नहीं है, इसमें मसाला डालो. मसाला डालने से टेस्ट बढ़ता नहीं है. प्याज लहसुन से टेस्ट बढ़ता नहीं. मैं प्याज लहसुन तो खाता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है प्याज लहसुन खाने में. पर कई डिशेस ऐसे हैं, यानी कि एक कश्मीरी मटन रोगन जोश या कश्मीरी मटन का यखनी, ये जो कश्मीरी पंडित लोग बनाते हैं, कश्मीरी मुसलमान रोगन जोश और कश्मीरी मुसलमान यखनी में लहसुन जाता है, प्याज जाता है, पर कश्मीरी पंडित इसमें नहीं जाता है. मैं why do I like it? Because it is delicious. आप अगर उसमें प्याज डालोगे, उसका टेस्ट खराब हो जाता है. तो it is not a way, remember, masala is not a way of making your cooking better. It is just a way of hiding a bad cook. तो लहसुन से दूर भागिए, जब यूज करना हो बिल्कुल यूज कीजिए. प्याज से दूर भागिए, जब यूज करना हो कीजिए.
मैं आप सब से विनती करूंगा कि प्लीज जो आपकी परदादी या नानी परनानी है जो भी हैं, उनके साथ अभी बैठ के उनके जो ओरिजिनल रेसिपीज हैं वो नोट कर लीजिए। देखिए इटली, फ्रांस, इन चीज़ों में इतना प्राइड लेते हैं खाना के लिए। उधर जो भारत रत्न की तरह जो अवार्ड्स होते हैं ना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये शेफ्स को दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं वो प्रिजर्व कर रहे हैं और उनको नया बना रहे हैं। हिंदुस्तान में शेफ्स को ये सब अवार्ड्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? वो भी गुरुदेव की तरह हैं। वो एक ट्रेडिशन निकाल के प्रिजर्व करके अगले जनरेशन को दे रहे हैं। तो अंडरस्टैंड, food is a very, very, very important part of your culture. We are not documenting it properly. We are allowing it to get lost. And the more and more the YouTube and digital generation takes over, we will lose all our traditions. So remember what I've told you. The oil is important. The carbohydrate is important. The spices specific to your region are important. Note all of those down. The techniques are important. In Bengal, for example, we never use a spice without first mixing it in water. It produces a completely different taste than if you put the chili powder or any spice directly into the onion and fry it. These are all little things that are important that we need to preserve. Finally, every other country that has a great food culture also has a system of protecting that food. एक DOCG नाम का है इटली में, जहाँ it is the appellation control. That is, basmati, for example, can only be produced in this region. It has to be produced only in this way and only in this season, and so on and so forth. The very fact that we do not do that is we are undermining our own food industry. We are preventing it from going up the value chain. हम अपने ही फार्मर्स को उसमें से ज्यादा पैसा बनाने नहीं दे रहे। और पैसा में एक्सटॉर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा जैसे कि भाई देखो, अगर तुम रास्ते से बासमती खरीदोगे, जो खुला बासमती है वो आपको 50 रुपए का देगा। वही बासमती ब्रांड वाला उसमें छापा लगा के बस 5 रुपए का पॉलिथीन लगाएगा और वो फिर 200 रुपए का वही 1 किलो चावल आपको मिलेगा। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको मानो, ये चावल देवता की तरह है। जो अच्छा आटा है वो देवता की तरह है, जो मसाला है वो देवता की तरह है। उसे पूजो, उसे सोच के इस्तेमाल करो, and then you will help yourself, you will help the farmers who need that. For example, have you heard of a rice called Gobindabhog? It comes, all of us talk about basmati, but Gobindabhog is the true pride and joy of Indian rice. It comes from Bengal. It is a tiny rice. You open it and smell it. It smells like hot buttered popcorn. आपको मन करेगा, जब खोलेंगे आपको मन करेगा, अरे वाह, ये तो बहुत सारा बटर डाल के मेरे लिए कोई पॉपकॉर्न लाया है, मैं तो ऐसे ही खाना चाहता हूँ इसे। और पकाने में उसका क्या मजा आएगा वो देख लीजिए। इसीलिए जो उसका जो खिचड़ी पकता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो अपने देश के बारे में रिसर्च कीजिए। सब यूट्यूब वीडियोस पे मत जाइए। प्याज लहसुन खाते हैं, वेरी गुड, बट ट्राई टू कुक विदाउट इट, क्योंकि आप ही नोटिस करेंगे जब आप इन चीज़ों के बगैर कुक करते हैं, you keep becoming a better and better and better cook, and that is connecting us to our roots. So hopefully I've tried to show you new ways. It would have been better with a cooking demonstration, but I can't do that with this. So I'll end here. Thank you. Okay, so answering some of the questions. What is your take on Indian food evolving with global trends? Veganism, no gluten, etc. देखिए, वेगनिज्म का तो काफ़ी ये रहा है, पर हम ये बिना डेयरी के करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे इसमें तो घी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दही बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम वेजिटेरियन थे और हमको प्रोटीन चाहिए था, और ये प्रोटीन तो हमको दूध और दूध प्रोडक्ट जैसे पनीर और दही से ही मिलेगा। तो अगर वेगनिज्म करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसमें भी देखिए, आप, इंडियन फूड इज लाइक हिंदुइज्म, कोई भी अनाथ नहीं होता है। हर बंदे को उसके नीचे एक इतनी बड़ी सुंदर सी पेड़ है जिसको हर बंदे को उसके नीचे छाया मिलता है। वेगनिज्म में भी आपको ये मिलेगा। What I don't like about Indian food trends is what I said about spices. हर चीज में मसाला डालना। ये जो सेलिब्रिटी शेफ होते हैं ना, ये हिंदुस्तानी फूड को मार डालेंगे। क्योंकि क्या करते हैं, हर चीज में बोलते हैं कि भाई 10 मसाला डालो। क्यों?
ग्लोबल ट्रेंड क्या है कि कम मसाला डालो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बस भाई ग्लोबल ट्रेंड फॉलो करके हम फिर से बंदरों की तरह वही करते हैं जो पहले करना चाहिए था, नहीं। बट गो बैक टू योर ट्रेडिशंस, दैट इज व्हाट इटली डिड एंड दैट इज व्हाट इज हैपेंड नाउ, ठीक है। हाउ डू आई सी इंडियन फूड इवॉल्व? आई डोंट सी इंडियन फूड इवॉल्व। मैंने क्या देखा है, इंडियन फूड आस्ते आस्ते डिवॉल्व हुए जा रहा है, ठीक है ना। एक साइड से तो ये बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट हैं कि भाई कढ़ी को बोलेंगे delicately simmered yogurt in a curcuma sauce. कुरकुमा क्या होता है पता है आपको? टर्मरिक। कुरकुमा आज पॉश टर्म है उसको बोलना कुरकुमा। So gently simmered yogurt and chickpea flour in a curcuma sauce served with deep fried fritters. क्या है यार? कड़ी चावल है भाई। कड़ी में जो वो वड़े डालते हो वो हो जाता है। तो ये ना ये बहुत अल्ट्रा पॉश हुए जा रहा है एक किस्म से, और उस पॉशनेस के पीछे कुछ सब्सटेंस नहीं होता है। तो हमको आप देख लीजिए वेस्ट में क्या होता है कि हिंदुस्तानी खाना एसोसिएशन क्या है, जब पॉकेट में पैसा नहीं है हिंदुस्तानी खाने के लिए जाओ, जब पॉकेट में पैसा है तब इटालियन या जापानीज, सबसे ज्यादा तो जापानीज हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सब सिंपल सिंपल खाने हैं। जो हमारा घर का जो खाना पकता था, जो गांव में जो खाना पकता था, गांव में आप देख लीजिए बस एक ही बार चूल्हा जलता था, और वो एक एक चूल्हे जलने में सब पकना चाहिए था। जो गोबर डालते थे उस चूल्हे में या लकड़ी जो डालते थे, बस दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, सब उसी में पकता था। तो बहुत ही सिंपल हुआ क्या करता था, इट यूज्ड टू बी डिलिशियस। सो यू नो, गो एक्सप्लोर दैट। What is my best Indian food memory? I think my best Indian food memory would be the first time I had yakhni. Uh, Yakhni and one other thing which was vetakoramba. So मेरे घर में क्या होता था कि मेरी माँ जो थी एकदम खतरनाक सी शेफ थी। जब भी वो पकाती थी ना, कोई उनका लोग डर जाते थे कि मैडम आप इतना घटिया खाना पकाते हो। कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि मैडम आईएएस ऑफिसर थी। तो बोलते थे नहीं मैडम हम तो खाना खा के आ गए। सबको भूख लगता था, वो बोलते थे मैडम नहीं 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 हमका तो खाना खा के आ गए। वो इतना बुरा था कि जो घर में जो काम करती थी प्रेमा अक्का, वो आके बोलती थी भैया भैया देखो अकाल होने वाला है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि होने वाला है, आपकी माँ किचन के अंदर आ रही है और वो पकाने वाली है, सत्यानाश होएगा। उससे जब वो रिटायर हो गई, वो अब बहुत अच्छा खाना पकाना शुरू कर दिया उन्होंने। पर ये उस समय की बात है कि जब मेरे को खुद अपने कल्चर के बारे में नहीं पता था। तो हम क्या करते हैं, रसम जो होता है, रसम और सांबार, ये एक्चुअली बहुत ही लाइट होते हैं। जो नॉर्थ में जो मिलता है ना, वो बस दाल में इमली डाल दो। देखिए दाल में इमली डालने से वो सांबार नहीं बनता है, ठीक है ना। उसकी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं और मैंने देखा है यूट्यूब में भी ठीक से ये सब सिखाते नहीं है। तो मेरा सरप्राइज था कि मैं एक मेरे आंध्रा की एक फ्रेंड थी स्कूल में, मैं उनके घर गया था और उन्होंने बोला, और मेरे को भूख लग रही थी। सब स्कूल में बच्चे, स्कूल के बच्चे को तो सभी भूख, हमेशा हर टाइम भूख लगता है। तो उनके घर गया और उन्होंने बोला कि भाई खाने में क्या है? बस ये पोटैटो रोस्ट है और ये रसम। ठीक है यार जो भी है दे। और जब मैंने ट्राई किया, और वो भी घी के साथ, घी का तड़का नहीं था उसमें, हम कच्चा घी डाल के ही खाते हैं। और उसमें क्या स्पेशलिटी है कि जो घी में जब बनाने के समय जो दूध का जो ये ब्राउन जो हो जाता है, वो टेबल में रखा जाता है। उसका एक स्पून लेके उसमें भी डाला जाता है, जो ब्राउन ब्राउन जो मिल्क सॉलिड्स जो हैं वो भी डाला जाता है। और उससे टेस्ट इतना आया, मैंने क्या 15 साल से तो ऐसे लगा कि मैं रसम जानता ही नहीं था। रसम हम रोज खाते थे घर पे, पर जब मैंने ये लाइट बत्ती सब ऑन होना शुरू हो गया सर में, वो था। और दूसरा था यखनी, क्योंकि यखनी में मेरे को पता लगा कि भाई इतने कम स्पाइसेस से, उसमें बस क्या है, बस सौंफ है, सौंठ है, सौंठ यानी कि जो सूखा हुआ अदरक होता है वो है, और एक दो गरम मसाला होता है। कि भाई दही में एक पका हुआ चीज़, एक मटन इतना टेस्ट हो सकता है, मैं जानता नहीं था। तो उसी से मैं अपना सब ये मसाला डालना मैंने कम कर दिया है। तो दोज वर माई बेस्ट इंडियन फूड मेमोरीज। Tell us something about foods that came out of other regions. Okay, Indian Chinese. तो आपको पता नहीं होगा ये, पर ये इंडियन चाइनीज का जो क्रेज चला है ना, ये आजकल चाइना में भी बहुत पॉपुलर हो गया। आजकल चाइना में क्या होता है कि वो दिखाते हैं कि भाई ये इंडियन चाइनीज है,
ठीक है, मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है पर पॉपुलर हो गया है। वो क्या करते हैं कि ये सब दिखाते हैं कि क्या हो रहा है करके। तो इंडियन चाइनीज का भी एक बहुत ही ट्रैजिक हिस्ट्री है कि वो कब आया था कि एक रिबेलियन हो रहा था चाइना में 1800s में, ताइपिंग रिबेलियन लेट 1800s में हो रहा था। उसमें वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज़्यादा लोग मरे, कम से कम 50-70 मिलियन लोग मरे होंगे ज़्यादा। दे से समटाइम्स 100 मिलियन पीपल। 100 मिलियन क्या होगा, 1 मिलियन 10 लाख, 1 करोड़ ऐसे, एक पता नहीं 1 करोड़ या 10 करोड़ लोग मरे होंगे, पता नहीं। 100 मिलियन लोग मरे थे। उधर से ये चाइनीज़ कम्युनिटी आया, और जो चाइनीज़ कम्युनिटी इधर आया बंगाल में सेटल हुआ, कलकत्ते में सेटल हुआ। और जो हमारा पूरा जो चाइनीज़ कुजीन है जो हिंदुस्तान में, वो पूरा उधर से आया है। और क्या होता है कि जब भी चीन से मेरे दोस्त आते हैं, मैं उनको ले जाता हूँ, बोलते हैं अरे वाह ये क्या चीज़ है, उनको बहुत अच्छा लगता है, पर बोलते हैं ये चीनी खाना नहीं है। पर देखिए हिंदुस्तान का ये एक किस्म से वो भी हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि हम हर चीज़ से जो उनका अच्छा है वो लेते हैं और उसको इवन बेहतर बनाते हैं। ओरिजिनल नहीं होगा, पर ओरिजिनल से हमको क्या लेना देना, टेस्ट तो अच्छा है ना। पर क्या होता था कि चीन में जब मैं जाता था काफ़ी सालों के लिए, खाना बहुत घटिया होता था। तो ये यार ये क्या खाना है। आजकल बहुत अच्छा बन गया उधर भी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी रूट्स डिस्कवर करना शुरू कर दिया है। मैं भी सोचता हूँ कि इधर हमको डिस्कवर करना चाहिए। पर और भी चीज़ें हैं जो मिर्च है, जैसे मैंने आपको बोला ये एज़टेक था। आप जानते हैं कि एज़टेक कल्चर में इंसानों का बलि दिया जाता था, और वो कैनिबलिज्म भी करते थे। जिसका बलि होता था उसको पका के खाते भी थे। तो जो पका के जो इंसान को खाते थे, उसमें जो पहला रेसिपी है जिसमें मिर्च, वो उधर से आता है। वो जब बंदे को पकाते थे ना उसको, जिसका बलि दिया गया था, उसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा डालना पड़ता था। और दूसरा क्या चीज़ पता है डालते थे उसमें? चॉकलेट। ठीक है, मैं चॉकलेट की तो बात नहीं करूँगा, पर आप ये देख लीजिए कि मिर्च उधर से आया है। और आज मिर्च तो हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट नेशनल सिंबल बन गया है। लोग कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी हिंदी में नहीं जानता है, पर जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ सबसे ज़्यादा किस्म के ये पौधे मिलने चाहिए। तो अमेरिका में बहुत किस्म के मिर्च मिलते हैं, दूसरा सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मिलता है। तो एक किस्म से फिर जो सबसे अच्छा था वो हमने लेके अपना बना लिया, आज वो इधर भी बहुत ये है। टमाटर, टमाटर हमको 17 तक पता, 1700 तक पता ही नहीं था टमाटर क्या होता है। तो आज भी ना जब हम पोंगल मनाते हैं तमिलनाडु में, जो शायद लोहरी, मकर संक्रांति, इन सब ऐसे कुछ कनेक्शन है उसका, हार्वेस्ट फेस्टिवल। उसमें हम क्या करते हैं कि हम कभी भी मिर्च नहीं डालेंगे, पोटैटो नहीं डालेंगे। पोटैटो साउथ अमेरिका से आया था, फिर 1700 में आया था, तो वो भी नहीं डालेंगे। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कच्चा केला जो होता है, वो एक किस्म का आलू की तरह होता है, उसका ये बनाते हैं। और जो जो मिर्ची जो पोंगल बनता है, खिचड़ी की तरह ही है, दाल और चावल। आप देख लीजिए ये दाल चावल दाल चावल, दाल क्यों था? ये हम हिंदुस्तान, लोग बोलते हैं हिंदुस्तान वेजिटेरियन है। हिंदुस्तान वेजिटेरियन नहीं है, हम दलेरियन हैं। क्योंकि जब हमने मीट दे दिया, जो प्रोटीन आता है वो दाल से आता है, और एक दाल से नहीं आता है, 2-3 दाल के मिश्रण से आता है। इसीलिए जब हमने बुद्धिज्म को एक्सपोर्ट किया चीन में, चीनी लोग वेजिटेरियन क्यों नहीं बने? क्योंकि उनके पास दाल नहीं था, वो तो दाल दाल खाते ही नहीं थे। तो दलेरियनिज्म हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। तो ये दलेरियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फूड। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर दलेरियन। So these are the different ways in which food has interacted. So chili would be the most important, I think. चाय तो आपको पता ही है चीन से आया, पर आजकल सब चाय लाटे वाटे खाते हैं, ये सब है। These were all the influences. तो देख लीजिए ये जो खाना है, ठीक है बाहर से आया आ सकता है, पर जो हमने जो उसका बनाया है वो यूनिकली इंडियन है। बिरयानी, जो बिरयान आता है, वो द वर्ड इटसेल्फ इज फारसी। अगर आप इस्फहान में, मैंने बोला भाई ये बिरयानी बोलते हैं, सब इस्फहान में इन्वेंट हुआ था। ईरानियन लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने जाकर उधर बिरयानी खाया। उधर का बिरयानी आपको पता है क्या है? एक रोटी के ऊपर एक कलेजी का कटलेट लगाते हैं, उसको तलते हैं, इसका नाम है बिरयानी। ठीक है, उसका हमारी बिरयानी के साथ कोई संबंध नहीं है। जो उज़्बेकिस्तान में बनाते हैं, वो ईरान और तुरान एक, उज़्बेकिस्तान को तुरान कहते थे, तो वो दोनों एक होल थे। जो वो बनाते थे वो भी एकदम अलग किस्म का है।
और जो हिंदुस्तान में जैसे हमने बिरयानी बनाया है वो आज भी ईरान में बिल्कुल ही नहीं बनता है। तो ये देख लीजिए, ये सब अडेप्टेशन का प्रोसेस है। हर चीज़ दूसरे जगहों से आ सकता है, क्योंकि फूड वॉज वेल्थ, फूड वॉज करेंसी, पेपर वॉज करेंसी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और हमने अपना यूनिक ये दिया है। हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई ये हिंदुस्तानी नहीं है, हर चीज़ हिंदुस्तानी है। उसको हमने यूनिकली अपना क्या वैल्यू एडिशन दिया है, दिस मेक्स इट यूनिक। ठीक है ना? यानी कि जैसे रिजोटो, यार चावल तो उगता ही नहीं था इटली में, हिंदुस्तान से ही आता था। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजोटो हिंदुस्तानी है ना। कि रिजोटो को बोलोगे वो चिड़ी है, या यार इसको क्या चावल पकाना नहीं आता था, सब खिला खिला चावल नहीं है, सब दाल की तरह इसने ये बना दिया है। ठीक है, जो भी है, बट इट इज़ a unique thing and it is uniquely Italian, just like that biryani is uniquely Indian. So next, what would a wholesome Indian meal consist? देखिए, फॉर मी होलसम इंडियन मील, मेरा तो दृष्टिकोण थोड़ा स्क्यूड है, क्योंकि उसमें मीट होना ही चाहिए, मीट मटन या मच्छी होना ही चाहिए। बट फॉर मी आजकल क्या हो रहा है, होलसम का माने ही चेंज हो रहा है। उन दिनों में भी अलग था। उन दिनों होलसम माने क्या था कि ज़्यादा तेल और घी खाओ, क्योंकि सब बहुत मेहनत करना पड़ता था। ये इलेक्ट्रिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं थे उन दिनों। अगर इडली पीसना था या वड़ा पीसना था, आपको हाथ से करना पड़ता था। वो इडली मशीन नहीं होता था, मिक्सी नहीं होता था, मम्मी को जाके सब ढाम 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 करके सिलबट्टा पे पीसना पड़ता था। तो उसलिए काफ़ी सारा खाना पड़ता था। आजकल व्हाट वुड बी कंसिडर्ड अ होलसम इंडियन मील, मैं आपको बताता हूँ। एक मीट होना चाहिए, पर अगर आप मीट नहीं खाते हैं तो एक दाल ज़रूर रखें, और उस दाल में बस एक दाल ना पकाएं, 2-3 दाल का मिश्रण करके पकाएं। अगर आप फर्मेंटेशन करना चाहते हैं, जैसे पांतुआ भात हम खाते हैं, एक दिन पुराना चावल, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके इनटेक के लिए। और वेजिटेरियन माने प्लीज़ वेजिटेबल्स खाइए। पनीर वेजिटेबल नहीं होता है। पनीर वो है जो यमराज इंसान के लिए है, पनीर वो है वेजिटेरियनिज्म के लिए। पनीर वेजिटेबल नहीं है। पनीर से आपको विटामिन नहीं मिलने वाले हैं, पनीर से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है, पनीर वेजिटेरियन नहीं है। तो खुदा के वास्ते प्लीज 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 हर पार्टी में पनीर मत सर्व कीजिए। ये पनीर का जो जो, जो दहशतगर्दी मचा है, मैं असली में मानता हूं कि ये जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो भी इतने खतरनाक नहीं होते हैं जैसे पनीर है हिंदुस्तानी कुकिंग के लिए। प्लीज नहीं, आप सब्जियां दीजिए, मेथी दीजिए, एक हमेशा एक हरा भरा लीफी सब्जी होना चाहिए, एक कोई बीन्स की तरह। देखिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट, सो बीन्स ऐसे कुछ रखिए, एक दाल रखिए, मिश्रण दाल अगर होगा बेहतर है, पर जरूर एक हरा सब्जी रखिए। देखिए पोटैटो बहुत ज्यादा पक जाता है, यू नीड ग्रीन्स, यू नीड रफेज, यू नीड समथिंग गोइंग इन। रफेज क्या होता है, वो एक किस्म से जो लूफा होता है, जो हम नहाते हैं स्क्रब करने के लिए स्पंज की तरह, वो हमारा अंदर साफ करता है। तो यू नीड ग्रीन्स। और वो ये नहीं है कि आप यार ये सेलिब्रिटी शेफ का देखो और उसको 2 घंटे पका के उसमें जो भी अच्छा है वो सब मार डालो उसमें। ठीक है ना? पकाएं तो बहुत कम देर के लिए पकाएं, 10-15 मिनट मैक्सिमम पकाएं सब्जियों को, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि याद रखें, जब गरीब लोग पकाते थे उन दिनों में गोबर में या इसके चूल्हे में या लकड़ी के चूल्हे में, उनके पास टाइम नहीं था। टाइम बस चावल के लिए होता था या रोटी के लिए होता था, बाकी जो उसके ऊपर जो स्टीम होता था बस उसी के लिए टाइम था, 10-15 मिनट मैक्सिमम। ठीक है ना? तो इसी में सब पकाया जाता था। तो प्लीज 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 reduce the amount of masalas, increase the amount of vegetables, and paneer is not vegetarian. Get over it. Throw the paneer out. Done. Anything else? Okay, so I think that's it. I found that fun. I hope you found that fun. It's a bit weird for me क्योंकि मैं आपके साथ interact नहीं कर पा रहा हूँ. But thank you very much. Are there any more questions? No. So thank you so much for being a part of Z Art Culture Lit Fest. Sorry, Z Art Culture Fest. Thank you so much. This was fun for me. I hope it was fun for you. Take care.